हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चंस कर देती हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन सारे गेट में आए हैं। मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस आप देखेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर आप वही पढ़ के चले जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आप इसमें देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, टू perfectly matched silicon transistors are connected as shown in the figure. Okay, assuming beta of the transistors, beta is what? It is the current gain. Okay, to be very high, that is, it is to be very high, and the forward voltage drop in diode will be 0.7 volt. So the value of current I will be, see, this is 1 kilo ohm, this is in series with this diode PN, this is transistor Q1 Q2. So as the Q1 Q2 transistors are symmetrical, na, since we have given two perfectly matched, that means since both are perfectly matched, since both Q1 and Q2 transistors are symmetrical, or you can say perfectly matched, perfectly matched, so we have Q1 is equal to Q2. Okay, that means VBE1 is equal to VBE2. Okay, now what is the formula? Have you ever read the formula? You might have read in your BTech final year, BTech third semester, or in your books also, that IC1, sorry, it is what? IC1. IC1 by IC2 is equal to e to the power VBE1 minus VBE2 by, it is VT, it should be VT. VT is what? Thermal voltage. And that means since VBE1 and VBE2 both are equal and it is generally 0.7 volt, so this might be equal to 0. So it will be 0, that means it will be 1, which implies IC1 is equal to IC2. Getting? Now, what we have to do in this diagram, what I can do, see, here it is 1 kilo ohm resistor, so the current is flowing through this resistor, let it be IR. This is the node, let it be M. Now the current flowing through the collector terminal of transistor Q1 is IC1. Okay, now the current that is flowing through the base of the two transistors, it will be IB1 and it will be IB2. Okay, and it is plus 5 volt supply to the transistor Q2, it is IC2. Okay, it will be IC2, let it be like this. Okay, now by K, since beta is same for both the transistors, as you can see in the question, beta 1 is equal to beta 2 is equal to beta for both the transistors, which implies the base currents IB1 is equal to IB2 is equal to IB. So by KVL in loop Q1, by KVL in loop Q1, we have what? IR, the current through resistor R, it will be what? As it is 0 volts na. Okay, so you have 0 minus, this is 0.7, then again if you just go on to loop this okay, so this will be 0.7 and then this will be 0.7 also. You know, when the diode, okay, this is P and N, and when it is short circuited na, so it is not open circuited, it is short circuited, so its forward voltage drop will be 0.7 volt na. So it will be, what is the question is given, forward voltage drop in diode is 0.7 voltage, so this is what? IR minus 0.7. Okay, and again it should be minus 0.7 and then it comes to like this, minus 5 volt. Okay, minus 5 and the resistance is 1 kilo. After solving, it will be 0 minus 1.4 minus 5 by 1k, and it is I think it will be minus 5. Okay, then it will be 5 minus 1.4 upon 1k, so it will be yes, it will be plus minus 5. Okay, 5.0 minus 1.4, it is 6 and it is 234, so it is 3.6 milliampere, right? आप भी solve करके मुझे कहीं गड़बड़ हो तो you can write down in the comment section box, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, जो KCL होगा at point M, ओके, यहाँ पे जो KCL होगा
मैं यहाँ पे अगर मार्कर, यहाँ पे भी तो आप KCL लगाओगे ना, नोडल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय KCL एट पॉइंट M, जो आपका IR होगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, IC1 एंड प्लस, देखो ये जो करंट है इट इज डिवाइडेड इनटू टू बेस करंट्स, IB1 and IB2 which are equal in nature. So it will be IC1, it will be what, IC1 plus twice IB, okay, and it will be what, IC1 plus twice of, it will be IC1 by beta, you can write it as like this way, and then it will be IC1 comma then beta plus 1 by beta, and it is 2, and then it is IR. Okay, so IC1 is equal to what, beta into IR by beta plus 1. Okay, and it will be what, yes, it is actually, see, no, beta plus 2, it will be beta plus 2, okay, sorry, okay, so that means it will be beta plus 2 only, beta plus 2. So this is the relation. Now for large beta we have IC1 nearly equivalent to IR is equal to 3.6 milliampere. यही हो जाएगा, क्योंकि हम इसको निगलेक्ट कर देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा. आप यहाँ पे देखिए, आपको KCL KVL तो लगाना आता ही है ना, ओके, लाइक 0, ओके, एंड यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो प्लस 0.7, फिर अगेन जब आप उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ पे जब ये जाएगा KVL तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, प्लस 0.7, फिर उसके बाद -5, तो उसके बाद जब आप KVL लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 माइनस 0.7, तो ये तो आपका हो गया ये बाय KVL जो आप लगा रहे हो, दिस इज इक्वल टू 0. जब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये इक्वल टू 0. तो ये जो आपका इक्वेशन आ रही है, एक मिनट, ये आपका कौन सी, इसमें जो आपका निकल रहा है ना, देखिए इसमें आपका IR निकल रहा है, दैट इज इट इज योर IR. तो ये IR की वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बी नियर अबाउट 1K, यही होगी ना, तो ये 1K हो जाएगी, ठीक है. यहाँ पे आप देख लीजिए 1K इंटू IR, दैट मीन्स ये जो वोल्टेज ड्रॉप है हम इसको बोल सकते हैं, यहीं पे हम थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, दिस विल बी योर VR. तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सॉरी, ये जो था आपका, इसको आप ऐसे, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी हम लोग KVL KCL भी लगाना भूल जाते हैं, सही से एग्जाम में नर्वस हो जाते हैं. तो यू शुड बी नोइंग दैट व्हेनेवर current flows through any resistor, it leaves here plus sign and leaves minus sign. तो यहाँ पे जैसे आपका ये क्या है, 1K है and this is what IR, तो आप इसको टोटली क्या बोल सकते हो, VR. ओके, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि VR प्लस 0.7, देन अगेन प्लस 0.7, देन -5, फिर आप लिख सकते हैं VR इज इक्वल टू 5 माइनस 1.4, देन VR इज व्हाट, आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं IR इंटू 1K. तभी मैंने यहाँ पे जो लिखा था वो मैंने ये वैल्यू लिखी थी, ओके, ये वैल्यू लिखी थी. तो कभी कभी अगर कोई चीज़ मैंने इधर लिख दी हो डायरेक्ट, प्लीज़ ट्राई टू फाइंड इट ऑन योर ओन, ठीक है. तो ये क्वेश्चन हो गया, तो मेरा ये बी ऑप्शन है. अब चलिए दूसरे क्वेश्चंस पे जाते हैं. ये वाली सीरीज, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए ये क्वेश्चन करते हैं. द डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपको दिया हुआ है, ये कौन सा है, ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट. व्हाट इट इज, ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट. अब इसमें देखिए ये क्या, इसमें आपको एवरी वैल्यू इज गिवन, ओके, यू हैव गिवन ईच एंड एवरी वैल्यू. यू नो ये सारे रजिस्टर्स इक्वल हैं, आर पाई AC एमीटर रेजिस्टेंस है, सोर्स रेजिस्टेंस दिया है, ये 2K है, ये आपका 200 किलो ओम है, ये भी 2K है, और क्या दिया, RC आपका, ये एक्चुअली RC ही है, तो 50K लिख लो इसे आप, ठीक है, और बीटा आपको ये दिया है. तो व्हाट इट इज आस्किंग, इट इज आस्किंग द डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन, मतलब AD पूछ रहा है, ठीक है. अब इसके लिए देखिए आपको पता है जो करंट गेन है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो जो आपका करंट गेन है HFE, दिस इज इक्वल टू बीटा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10Q, बिकॉज इट इज जनरली हाई, ओके. तो आर पाई आपको कितना दिया है, AC एमीटर रेजिस्टेंस जनरली होता है, तो ये 1 मिली ओम है, ओके. यहाँ पे जो आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस है और जो आपका लोड रेजिस्टेंस है, इसने दिया है ना RC 50 किलो ओम, यही
यही आपका लोड रेजिस्टेंस भी होगा. सो इट इज़ अराउंड 550 किलो ओम्स. ओके, ये आपका 50 किलो ओम्स होगा. जो आपका आर ई है ये आपका दिया है 200 किलो ओम. ठीक है, और जो आपका आर एस है ये 2 किलो ओम दिया है. ये तो हम बोल रहे थे. अब इसका एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल वोल्टेज गेन का. क्या फॉर्मूला होता है? दिस इज इक्वल टू माइनस एच एफ ई आर एल अपॉन एच आई ई. दैट मीन्स इट इज नियरली इक्वल टू आर पाई. तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस एच एफ ई आर एल बाय आर पाई. तो एच एफ ई कितना था आपका? माइनस 2 इंटू 10 क्यूब, दैट इज योर बीटा. लोड रेजिस्टेंस की कितना दिया है? 50 किलो ओम, दैट इज 50 इंटू 10 क्यूब. और एसी रेजिस्टेंस कितना दिया है आपको? 10 टू दी पावर 6. 1 मेगा ओम है आई थिंक ये क्वेश्चन में, क्योंकि उस हिसाब से आंसर मैच नहीं कर रहा है. तो ये 1 मेगा ओम है. तो मेगा में 10 टू दी पावर 6 होता है, ये मेगा होगा. ठीक है, अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, अभी हम यही तो निकाल रहे हैं. हाँ जी, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन, यस, तो यहाँ पे आप देखिए ये तो पूरा कट हो जाएगा एंड दिस विल बी टू माइनस 100. तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा, कितना दिया है इसमें? यस, माइनस 100. तो यू शुड बी नोइंग द फॉर्मूला फर्स्ट. ठीक है, ये सारे गेट के क्वेश्चंस हैं तो ये आपको आना चाहिए. अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? नाउ इट इज आस्किंग कॉमन मोड वोल्टेज गेन. कॉमन मोड वोल्टेज गेन का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस आर एल अपॉन ट्वाइस आर ई. ठीक है, when this formula is valid when r pi is greater than rs. okay, तो यहाँ पे आप देखिए जो कॉमन मोड गेन है it is equal to minus rl is how much? 50 किलो ओम by 2 and re कितना दिया है? 200 किलो ओम. it is 200 किलो ओम. ओके, जब आपने ये 200 किलो ओम दिया है तो इस केस में आप देखिए कि ये और ये सॉल्व करना है हमें. तो इट विल बी माइनस 5 बाय 40. माइनस 5 बाय 40 इट विल बी माइनस 1 बाय 8. तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 0.125 हो जाएगा. तो सॉरी, माइनस भी आएगा, तो आपका सी ऑप्शन होगा. यू शुड बी नोइंग द फॉर्मूला. अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ सी एम आर आर. तो ये तो आपको पता है, इट इज गिवन इन द रेशियो. दैट मीन्स नो नीड टू कैलकुलेट. नहीं, डीबीआई में तो पूछ रहा है, ये डीबीज में है सारे, क्योंकि डीबी वैल्यू मेंशन्ड है इधर. तो आपका जो CMRR होगा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन बाय कॉमन मोड गेन. तो ये आपका कितना दिया डिफरेंशियल गेन? देखिए ऊपर आंसर कितना दिया है, इट इज अराउंड माइनस 100. जनरली हम इसका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं. ये 100 है, ये 0.125 है. तो जनरली हम इसको ऐसे भी लेते हैं और ये हो जाएगा 100 अपॉन 0.125. तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा. अब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए. इट इज़ इजी. टेक आउट योर कॉपीज. जब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 25 5 जा 125 25 ये हो गया. 5 8 जा 40. तो आपका आंसर कितना हो गया? 800. तो यहाँ पे जब आप इसका डीबी में निकालेंगे, CMRR इन डीबी, इट विल बी इक्वल टू 20 log base 10. जनरली इट इज़ ADM बाय ACM. तो यहाँ पे कितना होगा? 20 log base 10 800. okay, so it will be 20 log base 10 and it will be what? इसको सॉल्व कीजिए. 8 into 10 square, so it will be 20 log base 10 2 cube plus 20 log base 10 10 square. तो ये कितना हो जाएगा? 360 log base 10 2 प्लस इस तरह से आप सॉल्व कीजिए 40 log base 10 10. तो यहाँ पे आप देखिए, this is what 60 into 0.3010 and this is what 40 into 1. अब आप इसे सॉल्व कीजिए. 60 into 0.3 अगर मैं लेती हूँ तो 3 6 जा 18. जितना भी आप सॉल्व करेंगे आप, तो आपका जो आंसर आएगा इट शुड बी नियर अबाउट हाउ मच? इट इज़ 58 dB. आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए ना. 0.3010 है इंटू 60 है. आप इसमें देखिए 1 2 3 4, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया. 6 1 जा 6 3 जा 18 18.06 0.06 को कैंसिल कर दो 58 dB. सो इजी क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आसान थे ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट. अब ये क्वेश्चन देखते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने? आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट. अब आप देखिए इसमें ये जो आपको दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए हमसे जैसे इसने दिया है, दिस इज़ द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक्चुअली, उसमें हम वोल्टेज डिवाइडर रूल भी निकालेंगे. अब इसमें क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल माइनस है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल प्लस है, बट देयर इज़ नो
voltage applied at the inverting terminal of this differential amplifier. तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा, जो इसका फॉर्मूला होगा, व्हाट इट शुड बी लाइक, हम देखेंगे कि ये आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन इन्वर्टिंग गेन लगाएंगे हम इसमें, तो इसमें 1 प्लस आर एफ अपॉन आर लेंगे, ठीक है, और बाकी हम इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। जैसे हमारा पास ये वोल्टेज है, तो हम मान लीजिए ये था V प्लस और ये था V माइनस, तो हमें पहले V प्लस की वैल्यू चाहिए ना, तो V प्लस की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो हम इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, तो एक हो जाएगा R बाई आर प्लस आर इंटू -1, क्योंकि यहाँ पे ये वोल्टेज लगा है, फिर प्लस हम क्या लगाएंगे, ये वाला यहाँ पे R, क्योंकि हम वोल्टेज कहाँ, वोल्टेज डिवाइडर रूल इज एप्लीकेबल टू दी सीरीज सर्किट, तो यहाँ पे अगेन R बाई आर, अभी हम इसके और क्वेश्चंस कराएंगे, देखते हैं, R बाई आर प्लस आर इंटू +2, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा R बाई 2R इंटू -1 प्लस R बाई 2R इंटू +2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 एंड +1, सो इट विल बी 2 2 जा 2 1 जा 2 2 -1/2, यही होगा ना, 1/2। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे ये जो V प्लस था आपका, V प्लस कितना हो गया, एक्चुअली 0.5 हो गया, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी आपकी, ये 0.5 होगी, तो यहाँ पे जो आपका RF है, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, सॉरी यहाँ पे, तो ये RF कितना दिया है, 1 प्लस ट्वाइस R, इनपुट रेजिस्टेंस जो है RI, मतलब ये जो है ये RI है, हम ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे, R इंटू 0.5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 0.5, तो ये 1.5 हो, तो आपका आंसर क्या होगा, 1.5 वोल्ट। प्लीज़ इसको आप एक कॉपी बना लीजिए न्यूमेरिकल्स की, और जो मैं कराती हूँ जैसे एनालॉग के न्यूमेरिकल्स की, आप एक मोटी सी रजिस्टर बनाइए और उसमें जैसे आप टॉपिक वाइज लिख लीजिए, एनालॉग के लिए कुछ पेज छोड़ दीजिए, माइक्रोवेव के लिए कुछ छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल्स के लिए तो आप चाहे तो कंबाइंड रजिस्टर बना लीजिए और एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाइए, बहुत फ़ायदा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन op-amp हैज़ अ डिफरेंशियल गेन ऑफ 10 क्यूब, दिस इज योर डिफरेंशियल गेन, and a CMRR of 100. The output voltage of a op-amp with inputs 120 microvolt and 80 microvolt will be, देखिए आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन है, CMRR हमने पढ़ा था, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ AD अपॉन AC, दैट मीन्स डिफरेंशियल गेन टू कॉमन मोड गेन, गेटिंग। अब आप इसमें देखिए कितना आपको दिया है, दिस इज 100, ठीक है। अब आप इसमें देखिए जो ACM हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ADM अपॉन 100, यही वैल्यू होगी। जब आप इसमें डिफरेंशियल गेन आपको 10 क्यूब दिया है, तो ये कितना हो गया आपका 100, तो यानी कि जो कॉमन मोड गेन है इट विल बी इक्वल टू 10, कॉमन मोड गेन विल बी इक्वल टू 10। ओके, नाउ आपका जो VD है डिफरेंशियल वोल्टेज है, VID डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज है, इट इज द डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेजेस V1 माइनस V2, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, आपको कितना दिया है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ द op-amp विद इनपुट्स, इट माइट बी आपका मान लीजिए 120 है, जो भी है 120 माइनस 80 माइक्रोवोल्ट जो भी है आपका, तो इट विल कम आउट टू बी 40 माइक्रोवोल्ट, राइट इट डाउन, ठीक है। सी न्यूमेरिकल्स नोट कर लीजिए। कॉमन मोड वोल्टेज कैसे निकलेगा आपका, V1 प्लस V2/2, तो ये V1 प्लस V2/2 हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, ये निकालिए, 120 प्लस 80 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू 200 अपॉन 2 एंड इट इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स। 100 आप इसको लिखेंगे माइक्रो वोल्ट्स, यहाँ पे ये क्या हो गया, माइक्रो वोल्ट्स। अब आपका एक फॉर्मूला होता है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू AD VD प्लस AC, ये क्वेश्चंस में मैं बहुत फंसती थी अपने टाइम में, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे हमेशा मैं भूल जाती थी, AD VD प्लस AC VC, दैट मीन्स डिफरेंशियल गेन इनटू डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज प्लस कॉमन मोड गेन इनटू कॉमन मोड वोल्टेज, तो यही होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, AD कितना दिया है आपको, देखिए AD इज 10 क्यूब, तो आप इधर लिखेंगे 10 क्यूब, VD कितना दिया है आपको, VID आप लिख लीजिए चाहे तो, जो भी है, सो दिस इज डिफरेंस वोल्टेज है ना एक्चुअली, आप इसको चाहे तो VD भी लिख सकते हैं, दिस इज VID और VD, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट, ओके। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 इंटू 10 की पावर -6, कॉमन मोड गेन आपका कितना है बेटा, सॉरी 10 क्यूब 10 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये 10 हो जाएगा,
इंटू यहाँ पे देखिए कॉमन मोड वोल्टेज कितना होगा आपका 100, तो ये 100 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, आदत मेरी वही पड़ी हुई ना, क्लास में सबको बेटा करके बुलाती थी, तो वही आदत मेरी पड़ी हुई है। एनीवे तो ये क्या होता है 40 इंटू 10 की पावर -3 प्लस दिस विल बी 10 टू द पावर -3, सो दिस विल बी व्हाट, इट विल बी 41 इंटू 10 की पावर -3, सो इट विल बी अराउंड 41 मिलीवोल्ट। कितना डैम इजी क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आंसर आ गया आपका 41 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो आपका जो है 41 मिलीवोल्ट इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन जो है ये आप खुद करके लाएंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, कौन सा ओपैम्प दिया है, आप देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दिया है। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, जो भी मैंने क्वेश्चंस बताया है इसको अच्छे से करिएगा। ओके, टिल देन देखिए अभी मैं आपको और क्वेश्चंस देती हूँ दो। ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया ना। चलिए, और कोई था, मैंने कुछ और रह गया था क्या, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, ये कल आपको इसमें भी देखिए आप केवीएल, जो आप केवीएल लगाते हैं, आप पहले केवीएल लगाना सीखिए। ठीक है, कि कैसे लगाना है। जैसे मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए इधर ही मुझे लगाना था, तो मैंने कैसे लगाया था, VB इक्वल टू VB माइनस VE। तो यहाँ पे आप देखिए ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये 0.7 वोल्ट हुआ ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, VB भी चाहिए, दिस इज योर VB। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ मैं इसको लिख सकती हूँ I इंटू 10K, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ जो भी है आपका प्लस VB प्लस 0.7। मतलब इस तरह से आप KVL कुछ लगाइए तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। जैसे ये इसने दिया है ना, आपने क्या किया, इसने देखो यहाँ पे मैंने कल यही आपको मैं बताना चाह रही थी कि अगर इस तरीके से लगाएंगे तो ये तो देखो ये तो हो गया VBE एंड यहाँ पे VEE था, तो मैंने लिख दिया प्लस VEE इक्वल टू 0। तो VBE इज वॉट, VB माइनस VEE एंड -5 इक्वल टू 0। तो VB इज वॉट, हमें VB की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, VBE इज VB माइनस VE, राइट। तो VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ मैंने लिखी है ना, VB की वैल्यू VBE प्लस VE हो जाएगी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, VBE प्लस VE माइनस 5। तो VBE इज 0.7 एंड यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से है, मतलब जब आप उसको दूसरे क्वेश्चन में ले जाएंगे तो -0.7 प्लस 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो VE है, अभी हमें क्योंकि हम ये पूरा देख रहे हैं ना, VE तो यहाँ है, दिस इज माइनस, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आ रही है VCC माइनस VB अपॉन RC, यही होगा ना। तो यहाँ पे हमें VB की वैल्यू चाहिए, तो हमने ये VB की वैल्यू निकाली ना, इधर कितनी निकाली, VB इज इक्वल टू 5 माइनस 0.7, सो इट विल कम आउट टू बी 4.3, यही होगा ना 4.3। ठीक है, तो आप इसको जरा अच्छे से करिए। ये KVL हम देखिए ना, ये लूप है आपका, ये लूप है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, VBE प्लस VEE माइनस VEE, यही इक्वेशन होगी ना। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मान लीजिए मैं भी गलत हूँ, पर लगाना ऐसे ही है KVL, जैसे इस लूप में आपको लगाना है। तो VBE प्लस VEE माइनस VE, तो यहाँ पे आप देखिए VBE जो था, यहाँ पे हमें VB की वैल्यू चाहिए एक्चुअली, बेस एमीटर वोल्टेज। तो ये कितना हो गया, या मेरे ख्याल से ये जो है 0.7 है। यहाँ पे आपको लगा इस तरीके से आप कुछ इसमें फीड कीजिए तो आपकी ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, जस्ट टेक आउट योर कॉपीज एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यूज बाय प्रॉपरली अप्लाइंग द KVL एंड KCL इक्वेशंस। मैं अभी इतना इसलिए नहीं बोल रही तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ये डैम इजी है, तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगी। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।